one, just see the concept of events of probability. Now see, events are of two type. That is elementary event, and second one is the compound event. देखिए, बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, कंपाउंड इवेंट्स क्या होती है. नाउ सी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एलिमेंट्री इवेंट. नाउ सी, व्हेन एन आउटकम ऑफ a random experiment is called elementary event. मतलब क्या होता है, अभी बात समझ में नहीं आई होगी. देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं. When we will throw a single coin, then either we will get head or tail. Then एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट के केस में इस पॉसिबल आउटकम्स में केवल एक ही आउटकम आएगा. देखिए, जैसे हम कहेंगे इवेंट E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. देखिए, केवल ये आया आपका. E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल. देखिए, केवल ये आया. इसी तरह देखिए, व्हेन वी आर थ्रोइंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, देन इट्स सैंपल स्पेस विल बी हेड टेल टेल. अब देखिए, हम इवेंट क्या ले रहे हैं. E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स. देखो, तो इस केस में देखिए, हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 4. इसमें केवल ये आ जाएगा. अब हम E2 इवेंट ले रहे हैं. इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन. अब देखिए, इस केस में केवल ये पर्टिकुलर आउटकम आएगा. अब हम इवेंट E3 ले रहे हैं. इसमें हम क्या ले रहे हैं, गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन सेकेंड कॉइन. अब देखिए, आपको इस समय ये वाला आउटकम आ जाएगा. और हम E4 ले रहे हैं. इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टू टेल्स. तो इसमें ये आउटकम आएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ जस्ट सी द कंपाउंड इवेंट. जैसा नाम वैसा काम. When outcome is the combination of two or more elementary events, then it is called compound event. Now I am writing here, now see, I am writing here, when outcome is combination of two or more elementary events, it is called compound event. अब देखिए, अभी समझ में नहीं आया होगा. अब देखिए, आई विल टेक अ एग्जाम्पल. सपोज सी, पहला एग्जाम्पल ये है. व्हेन वी थ्रो अ सिंगल डाई,
then all possible outcomes will be 1 2 3 4 5 6. Okay, if I say E1 is the event of getting even numbers, देखिए हमने क्या लिया, E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स. अब इवन नंबर्स क्या होती हैं, 2 4 6. अब ध्यान से देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्री इवेंट्स. आई होप बात समझ में आ गई होगी. देखिए इसमें क्या है, मीन्स दिस इवेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्री इवेंट्स. नाउ जस्ट टेक इवेंट E2. Now E2 is the event of getting odd numbers. अब देखो इसमें देखो odd नंबर में क्या आएगा, 1 3 5. ये देखो 1 3 5. That is, it is the combination of 3 elementary event. Combination of 3 elementary events. I hope you have understood. Just see one more example. When we are throwing 2 coins simultaneously, then sample space will be head 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 tail tail head tail tail. अब देखो I am taking an event E1 is the getting. E1 is the event of getting exactly one head. आप देखो getting exactly one head. अब इसमें देखो हमने क्या लिया, E1 is the event of getting exactly one head. तो अब इस केस में देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा. अगेन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 elementary events. Okay, I hope you have understood and there should be no confusion in elementary event and compound event. Now just see how we will find the probability of any event. Now see what is the probability. Probability of any event is the equals to the favorable outcome upon total outcome. See, probability of any event, probability of any event equals to the favorable outcome upon total outcomes. probability को P से डिनोट करते हैं, that is PE, probability for event, any event, that is favorable outcome upon total outcome. अब देखो किसी भी इवेंट की probability of any event is less than or equal to 1 and greater or equals to 0. हम कह सकते probability of any event is between 0 to 1. Means the 0 will be the probability of impossible event and 1 is the probability of 100% possible event. I hope you have understood. Then just see one question based on probability. Now question is, when we throw a single die then find the probability. आप क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बहुत ही आसान है. क्वेश्चन नंबर 1, when we throw a single die then find the probability of
then find probability of getting, इसका पार्ट 1 है, एंड इवन नंबर्स, गेटिंग इवन नंबर्स, सेकेंड पार्ट हो गया ऑड नंबर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, देखिए। थर्ड मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट इज नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6। फिफ्थ पार्ट है नंबर्स लेस देन 5, okay, and last part is the number greater than 3, number greater than 3 and less than 5। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले वी विल राइट द सैम्पल स्पेस। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 6। नाउ सी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। सो फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स विल बी, देखिए टोटल आउटकम 6, इवन नंबर्स 2 4 6 3, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। देन सेकेंड पार्ट, probability of odd numbers, the how many odd numbers are there, 1 3 5, 3/6, 1 जा 2 जा, आंसर will be 1/2। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, सी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स just the table of 3, the multiple of 3 will be 3, 6, तो probability will be 2/6, 1 जा 3 जा, probability will be 1/3। then 4, see now number greater than 6। अब देखिए सैंपल स्पेस में कोई नंबर ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेट इज इम्पॉसिबल इवेंट, 0/6, ये 0 हो जाएगी। उसके बाद नंबर लेस देन 5, जो नंबर 5 से लेस हो, देखिए कौन सी नंबर, 1 2 3 4, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, it will be 2/3। and then after that number greater than 3 and less than 5, जो नंबर हो 3 से ग्रेटर हो एंड लेस देन 5, डेट इज 4। देखो नंबर ग्रेटर देन 3 लेस देन 5 4, so probability will be 1/6। I hope you have understood. If anybody having any confusion, then just write in the comment section, and continuously keep on watching my video and support me, and one humble request from my side, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.